I knew that there will be so much in this, so I had to make pointers in my class, and that class was of 2 hours, and all the time I was just doing the pointers, what the thumbnail would be, what the title would be. This is what it takes to be a content creator. Before you say कि भाई ये jacket क्यों पहन रखा है, it's literally like May, June, I don't know what month it is. Oh, it's April, yeah. Let me tell you, there's AC back there, so that's why, and I love to experience some cold. बहुत distracted हूँ, but let's go back to the topic. So I have this one train which I always take, like always, all the time. If I have to choose like another train, no, I would not. I will take like extra leave, but I need to go from that train because I'm familiar with the time, etc. It feels like I'm teleporting in that because you just sit there in the night and in the morning you're Delhi. But going there gives me anxiety, like serious anxiety. Other than that, I'm really happy to go home, but the journey to go to railway station, I'm sorry, that's so much stressful. Cause listen, I wrote all of the things why it's so hard. I need to get the auto, and sometimes I'm just waving at the main road. I'm just standing there, there's a guy just waving, and I have to also like squeeze with all of them. Cause when you're like trying to get the auto in like main road or something, there's like 6-7 people, 6-7, yeah, 6-7. Fuck. Sometimes I have to go like this. I'm like this, and they're like, "Are you okay?" And I'm like, but I'm not. मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं, इतना बुरा हाल होता है. And I need to make sure that I have all the saman which I have, and my saman is not like one, just a bag. No, I have a freaking trolley, I have a bag, and I have a tennis. I don't know what is that, but हाँ मेरे पास कमान की. This is what happens when you don't eat breakfast and lunch. Kids, please don't do that. Like, मैं तो इंसान नहीं हूँ. मैं इस कॉलेज में लिया हूँ एडमिशन, तो ऑब्वियसली मैं इंसान कहाँ हूँ. मेरे हर 10 दिन में पेपर होते हैं, जो भी है. और मुझे ये भी करना है कि मतलब मैं स्कैम ना हो जाऊँ, मेरे से गलत पैसे ना मांग ले. फिर उसके बाद मुझे लगेज का ध्यान देना है, और अगर वो भी कम था तो फिर मुझे अटेंशन नहीं पसंद है. मुझे पसंद नहीं है कि कोई, मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे वो घूर रहा है. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. मेरा मन करता है उसकी आंख निकाल लूँ, क्योंकि आई एम सॉरी, अगर मुझे पैसे मिलते, तुम लोग अगर देख रहे हो और मुझे पैसे मिल रहे हैं, मतलब कॉन्सर्ट या फिर फैन साइन है, तब तो ठीक है. पर अगर उसके अलावा मुझे कोई देखता है, आई कैन नॉट फंक्शन. तो फिर उसके लिए मैं कुछ दिनों पहले से ही ट्रिम करना बंद कर देता हूँ. जैसे मेरी दाढ़ी आ जाए और मैं मास्क लगाता हूँ, कैप लगाता हूँ, ब्लैक कपड़े पहन के जाता हूँ, जैसे अटेंशन ना मिले. फिर भी उन लोगों को पता लग जाता है कि भाई मैं यहाँ का हूँ ही नहीं. Anyways, जो भी है, किसी तरीके से मैं स्टेशन पहुंच गया, and I just went to my seat and all of that, whatever the fuck. And in my seat, I saw a guy like a bandar sitting there, even had his luggage on there, and I was like, what the fuck? I was like, let's see what this bitch is doing. And I saw him like putting these sheets on his seat from my seat, and I was like, have you ever seen me do it? Cause I sit on my seat, I'm like मेढक की तरह मैं कूद के इधर उधर चला जाऊंगा, अपने पे ही ऐसे प्यार से करता रहूंगा. बट ही वॉज लाइक रियली nasty. उससे पता लगता है वो कैसा लड़का था, ठीक है ना. थोड़ा कैरेक्टर तुम्हें पता होना चाहिए उसकी हरकत से. फिर मुझे लगा वट एवर द फक, मैंने डाउनलोड कर रखा था, और आई ब्रॉट सो मच स्नैक्स सो दैट आई वुड जस्ट सिट डाउन. मैं अपना लैपटॉप ऐसे खोल के ऐसे सो के, फिर उसके बाद लाना जल्दी चला के अपना सीरीज देखूंगा. मेरे दिमाग में ये था, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि वो लड़का कैसा है और जो भी था. मुझे लगा हटे मेरे सीट से. बाद सुबह आ गई, वो घड़ी आ गई जब मुझे जाना था, और इसी समय गांड हुआ. तो फिर वैसे मैं उठ गया. फिर से जो मतलब मेरी अटेंशन ना लेने की जो भी इच्छा होती हैं, उसकी वजह से मैं नीचे उतरा नहीं पहले. मुझे लगा पहले ये सब लोग जो इतने बैठे हैं, मैं इन लोगों के सामने नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे अपना कलेक्ट कर लेता हूँ. नीचे जाके धड़ाम से एक वो ट्रॉली उठा लूंगा, फिर उसके बाद चला जाऊंगा. मुझे पता ही नहीं था कि ओ भाई मेरा तो स्टेशन आ गया. फिर मुझे पता चला ओ स्टेशन आ गया यार, चलने ना लगे. फिर उसके बाद धड़ाम उतरने लगा. मैंने सारा का सारा अपना ले लिया, वो मतलब लगेज, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, और मैं जाने लगा. मैंने काउंट किया, हाँ बैग है मेरा, ट्रॉली है, और मेरी टेनिस वाली वो चीज़ है. मुझे ये कैसे नहीं पता टेनिस वाली ये चीज को क्या बोलते हैं. जो भी है, अगर चल रहा है तो चलने दो. जस्ट लाइक मी, पता नहीं मैं कैसे चल रहा हूँ बिना ब्रेकफास्ट के और बिना लंच के, और फिर भी बक बक करने के, और हार इतना करने की शक्ति है मुझे, थैंक्स टू गॉड. एनीवेज, बहुत ड्रामेटिक हूँ मैं, बहुत ड्रामेटिक. मैं उतरा, और मतलब वो जो होता है ना प्लेटफॉर्म जैसा, मैं प्लेटफॉर्म जैसे पे गया किसी तरीके से, उसे ढो के अपने 2 हाथ से ढो के उठाता हूँ. फिर मैं नीचे उतर गया, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अरे चलो अब तो फाइनली मैं अपने घर जा पाऊंगा. वेट, मैंने तुम्हें गलत बता दिया. वो मेरे जो घर जाने वाली ट्रेन होती है ना, वो यहाँ पे भी आती है कॉलेज वाली जगह पे. तो फिर मैं अपने घर से कॉलेज आ रहा था उस समय. थोड़ा सा दिमाग मेरा खराब हो चुका है यार. मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया हूँ, ना लंच किया हूँ. प्लीज़
तुम तो थोड़ी मतलब दया कर लो, मेरे कॉलेज वाले नहीं करते ना, मेरे कॉलेज के लोग करते हैं, मुझे इंसान नहीं समझता, तुम समझ लो जो भी है। तो फिर मतलब ऐसे करके मैं उतरा और मैंने, ओह कहाँ है ये, है नहीं, ये वो तो नहीं हो रहा है जो मैं सोच रहा हूँ हो रहा है। फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने शायद फिर से अपना ये जो गोल्ड फिश मेमोरी है उसकी वजह से शायद मैंने फिर से छोड़ दिया है। फिर भी मैंने ऐसे डिल्यूजन में सोचा कि नहीं नहीं होगा होगा होगा, चलो वहाँ पे जाता हूँ फिर से चेक करता हूँ। पर मैं वहाँ पे ऊपर गया, ऊपर चढ़ के किसी तरीके से, फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ ओह किस प्लेटफॉर्म से आया था मैं, मुझे पता ही नहीं है मैं किस प्लेटफॉर्म से आया था। मैंने एक अंकल से पूछा जो मतलब कूली जैसे लग रहे थे, बट ही वॉज नॉट, एंड ही वॉज लाइक भाई मुझे क्या पता, एंड आई वॉज लाइक। फिर मैंने एक कुली से पूछा, उसने मुझे एक जगह बताई, वहां पे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैं दूर उधर देखा हूँ और दूसरे स्टेशन पे मुझे दिख रही है अपनी ट्रेन, एंड आई एम लाइक दिस बिच, अब मैं इतनी दूर जाके फिर से कैसे जाऊं। फिर जब तक मैं वहां तक जाता तब तक वो जा चुकी थी। हाँ लकीस्ट बॉय ना, हाँ बहुत लकी हूँ, ठीक है ना। मेरे पास मत आओ, अगर उस समय आते ना मैं सच में या तो तुम्हें रोता हुआ मिलता या फिर किसी को मारता हुआ देखता, ठीक है ना। मेरे खाली दो स्टेट है, इधर हम मेंटल और इधर हम क्रैशिंग आउट क्राइंग, ठीक है ना। बहुत ठीक है ना बोलता हूँ मैं, पता नहीं कैसे, अब नहीं करूँगा। फिर उसके बाद फिर से जो कूली भगवान थे, मैंने उनसे पूछा ओ ये हो गया है क्या करूँ। उन लोगों ने मेरी तरफ देखा और जज किया होगा अंदर ही, पर एनीवेज वो तो सभी करते हैं मुझे, ठीक है ना। फिर ठीक है ना तो ठीक है ना ब्रो, व्हाट द फक इज दिस। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन जाओ, और मेरे तो पुलिस स्टेशन सुन के आई वाज लाइक फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, अंदर मैं गया, वहां पे पूरी मेरी आईब्रो ऐसी थी, अपने आप मेरे सांस नहीं आ रही थी, मेरी टेंशनिंग हो रही थी। तुम मुझे उस समय देखते तो फिर तुम मतलब मेरे फेस पे सबटाइटल्स देखते कि मैं मरने वाला हूँ, मैं अपने माँ बाप को शक्ल कैसे दिखाऊंगा। जो पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे अच्छा फील करवाने की बजाय वो तो और बोल देते कि काफी बार पुलिस वाले ही उठा लेते हैं यार थोड़ा सा मतलब मैं इतना डैमेज दूं और तुम उस पर और डैमेज दे रहे हो। और मेरी वो रोतड़े वाले जो शक्ल थी उसी के साथ मुझे दो पुलिस मैन ने देख लिया, पूरी बॉडी वगैरह एक्सेट्रा। मैं फैंटेसाइज नहीं कर रहा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, प्लीज यू। उनमें से एक ने कहा क्या हुआ, मैंने उन्हें सारा बताया। फिर उन्होंने मेरा फोन नंबर दिया जो मुझे आधा आधा याद था, फिर भी मतलब मैं प्रिटेंड किया कि मुझे याद था, और प्रिटेंडिंग से हो भी गया। वो डायल किया नंबर उन्होंने, फिर कॉल उठाई और वो थी मेरे साइड वाले लड़के के पास। मुझे लगा ये कौन है, फिर उसने कहा मैं किसी को भी फोन नहीं दूंगा जब तक मुझे वो लड़का नहीं दिखेगा। फिर उन्होंने वीडियो कॉल की, मुझे दिखाया, तब जाके उसने कहा हाँ ठीक है मैं अगले स्टेशन पे दे आऊंगा। वो अंदर चले गए पुलिसमैन, क्योंकि जो उनके दूसरे दोस्त थे उन्होंने मतलब शायद वो उनकी वाइफ जैसे होंगे शायद, इसी वजह से अंदर जाके कुछ भर दिया था। अंदर जाके ऐसा कुछ भरा कि वो वापस आए ही नहीं। और जब वो वापस आए और मैंने सर प्लीज हेल्प मी किया फिर से, उन्होंने कहा तुम पागल हो क्या, तुम बीटेक कर पाओगे, बीटेक की फुल फॉर्म क्या है। मैंने कहा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने ऐसे मुझे जज किया और उन्होंने कहा तुम्हें शांति नहीं है क्या, मैं कर रहा हूँ ना, मेरा तो शिफ्ट भी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए रुका हूँ। भाई शिफ्ट तो वहां पे होती भी नहीं है, बक बक मत करो, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें कुछ सिखाया ये बोल दो। उस लड़के का कॉल नहीं आया। अब जो मतलब पुलिस वगैरह वाले थे जिन्होंने मुझे कहा था कि शायद चोरी कर सकते हैं, उन्होंने पहले मुझे आशाएं दी थी कि तुम जाके नहीं लाओगे, तुम्हारे पास कोई आएगा जो ला के तुम्हें देगा, इफ दैट मेक्स सेंस। जैसे मतलब मेरे कॉलेज वालों ने मुझे आशाएं दी थी कि यहाँ पे प्लेसमेंट होती है, पर चलो नहीं बोलता हूँ, नहीं तो मुझे सच में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग सच में नहीं बोल सकता मैं जो भी है मुझे काटना पड़ेगा शायद ये पार्ट, पर इतना कौन देखेगा कोई। एनीवेज बहुत डिस्ट्रैक्टेड, मुझे कोई दवाई चाहिए जिससे मतलब मैं फोकस रहूं, मेरी ज़िंदगी आधी सही हो जाएगी। और जब तक मैं वेट करता मुझे पता चला वो जो ट्रेन थी जिसमें मैं बैठ के जा रहा था वो लेट हो गई है। मतलब मेरा जो लेटेड वायरस है ना, जो मतलब हमेशा मुझे लेट करता है, और बट आई स्टिल द वन हु वेट, इफ दैट मेक्स सेंस, वो ट्रांसमिटेड हो गया मेरे ट्रेन पे भी, वो भी लेट होगी। मेरी तो टेंशन और बढ़ रही है, इट्स इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द टाइमिंग, ठीक है। फिर से ठीक है ना, मैं आगे कैसे बढ़ूं बिना ठीक है ना बोले, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं बेवकूफ हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे लिख के दिया जैसे बच्चों को देते हैं ना क्लास टीचर ऐसे नर्सरी वगैरह में, वैसे उन्होंने मुझे लिख के दिया, कार नंबर दिया, कार नंबर नहीं ट्रेन नंबर और उसका नाम। मैं वहां प्लेटफॉर्म पे गया और फिर से मुझे वो मिल ही नहीं रही है।
फिर उसके बाद मैंने एक कूली से पूछा, उसने कहा तुम्हें जाना क्या है? मैंने कहा बीप बीप ये जगह है। यही तो है बेवकूफ। फिर उसके बाद मैं उसमें बैठा, वो भी लेट होगी। मेरा बता रहा हूँ, मेरा लेटेड वायरस इट्स लाइक स्ट्रॉन्गर देन द कोविड। कितने ही मार्क्स सी दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन यू स्टे इन कॉलेज और तुम्हारे हर 10 दिन में तो मार्क्स वगैरह का बात होती है। कितने ही मास्क वगैरह तुम लगा लो, तुम मेरे लेटेड वायरस से नहीं बच सकते। और ट्रेन क्या थी, वो भी लेट होगी। वो 1 घंटे बाद चली और वो 3 घंटे बाद पहुंची। और मुझे पता नहीं है, तुम सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। वो इतने 1000 का फोन, ये मेरा करियर है। अभी करियर कुछ बना नहीं है, पर जो भी है मतलब मेरे दिमाग में तो बन चुका है क्योंकि मैं डलूलू हूँ। मेरा पूरा करियर वहाँ पे है और मुझे पता भी नहीं है कि जो मैं इतने घंटे लगा के वहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे होगा कि नहीं। वहाँ पे पहुंचा, ऐसे जैसे पूरा जगत शांत हो गया, जिसमें मैं वॉर रेफ्यूजी हूँ और सब कुछ हार वगैरह के मैं ऐसे शांति सी जगह पे आया। कोई नहीं था वहाँ पे, एकदम फ्रेश पेंट था। 3 प्लेटफॉर्म थे वहाँ पे। मैं एकदम रश भी नहीं किया, पता नहीं कैसे मेरा सारा रश चला गया और मैं वहाँ पे प्यार से गया। थैंकफुली दे हैड इट। और वो मेरे से फिर से जज कर रहे थे, तुम ये हो, तुम ये हो। मैंने कहा हाँ मुझे फ़ोन दो प्लीज़, मैं टच करने दो, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। मतलब मैं तड़प रहा था उसके लिए। उसके बाद से मुझे अपनी औकात याद आ गई। उसके बाद से मुझे पता चल गया कि अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए। मम्मी आपके वर्ड से नहीं हो पाया, मुझे फ़ोन ने सिखा दिया। ऐसा सिखाई मत देना भगवान फिर से, बहुत गंदा था जो भी था ये। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे मिल गया और उन लोगों ने मेरी फ़ोटो खींची जैसे मैं न्यूज़पेपर में आऊँ। वाह देखो मैं तो न्यूज़पेपर में आ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे पास वो मिल गया और मैं फुदक के रैबिट की तरह आई जस्ट केम बैक टू माई हॉस्टल। और वो जो रास्ता था मुझे वो बहुत प्यारा रास्ता लगा और उसमें मैंने 5000 बार अपने सारे सामान को काउंट किया होगा पक्का। उसके बाद से मैं हर दिन काउंट करता हूँ। अब अगर कुछ खोया होगा मुझे मार डालना, इससे ज़्यादा लेसन नहीं मिल सकते। मुझे भगवान उठा लेना, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, इफ़ दैट मेक सेंस। मैं ऐसे काउंट करते 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना करके मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं इतना बेवकूफ़ था, मेरे अंदर वो कीड़ा आ गया कि मतलब नहीं मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं जाके लाऊंगा फ़ोन, वो तो लाऊंगा ही, और जो मतलब मेरा कॉलेज अब तक छुटा है, लास्ट के जो 2 लेक्चर है वो भी अटेंड करूंगा। मैं ये सोच के अंदर आया, मेरे अंदर मोटिवेशन इतनी भयंकर वाली थी, पर मैं यहाँ पे आके पढ़ गया। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के कुछ नहीं किया, नहीं मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ। 1 to 1 की सीरीज जो मेरी है उसका एपिसोड 1 लिखा और अगले दिन फिल्म किया और तीसरे दिन उसे डाल दिया और बूम 50K हो गए और सारे कॉलेज वाले लोगों को पता लग गया। सी दिस इज इन माई हेड दिस थ्योरी दैट whenever I go to my home and I come back, I promise you there will be like high amount of change in my life. This is just a theory which I generally believe in. तो मतलब मेरी पूरी जिंदगी चेंज होगी। तो जो भी है, शायद कितना टाइम हुआ भाई साहब, मुझे 3 मिनट में वहाँ पे भाग के जाना पड़ेगा। मेरी वर्कशॉप है, मुझे मजदूरी करनी है, उसमें मतलब कुछ घिसना वगैरह होता है, पता नहीं। मैंने तो डाउनलोड भी, जो भी है मेरी ज़िंदगी नहीं, अभी ज़िंदगी के बारे में नहीं रो सकता मैं, अभी मुझे भागना है। ठीक है कि टुमारो बाय। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैंने बहुत गंदा बनाया, पर जो भी है वर्क इज़ वर्क, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अरे यार मैं सुंदर लग रहा, कब नहीं लगता हूँ। नेक्स्ट narcissist. I take that back. 11. Recording का time ही 11 था। ठीक है, bye. Okay, tomorrow, bye. And one more thing, I post this because on every Wednesday we wear pink and do story times. So sub for that. कहाँ जाना था? ग्राउंड फ्लोर। मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इस वजह से शायद। फैशन एक जीन्स और भाई की शर्ट पहन मेंटल हो चुका हूँ मैं, गवारों की तरह बोल रहा हूँ। पता नहीं क्या आ गया मेरे अंदर, कोई भूत आ गया है। ये वीडियो के लिए सॉरी, बट आई डिड द वर्क। सी आई फेड यू, भले गंदा फूड हो।